Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 9, Kings and Chronicles. In this chapter, today we will continue the topic imperial officials and administrations. Imperial officials and administrations. And in this topic, today we focus the Mansabdari system. What was Mansabdari system? We will read today. I have discussed in my previous video, if you have remembered, the Mughal nobility, the topic Mughal nobility, and where Chare-Chaman, the book wrote by Chandrabhan Brahman, who explained very clearly the various ethnic groups, the tribal groups, the warriors, the outsiders, they were part in the Mughal nobility. They play a very important role in the Mughal nobility. They were appointed as a Mansabdar in Mughal Empire in the various provinces. This Mansabdari system was base of military organization. It was taken from Southeast Asia, Abbasid. I think you are familiar with the name of Abbasid. Class 11th history, chapter 4, Central Islamic land. We have discussed there the Abbasid revolution. They were Abbasid. They first time implemented the Mansabdari system, and वहां से तैमूर, चंगेज खान और फिर मुगलों ने यह व्यवस्था अपने हाथ में ली. It means we have seen that system was adopted by Mughals in the Akbar's reign 11th year. अकबर अपने शासन काल में ये मनसबदारी सिस्टम एक्सेप्ट करता है. मनसबदारी सिस्टम्स, मनसब it means post. Here one thinks it should be very clear that mansab it means post. The Mansabdari system was introduced by the Mughal Emperor Akbar as a new administrative machinery and the revenue system. The term Mansab literally means position, status, rank. But in context of the structure of the Mughal administration, it indicated the rank of Mansabdar, that is holder of Mansab in the official hierarchy. The origin of the Mansabdari system, however, can be traced back to Genghis Khan. Genghis Khan organized his army on the decimal basis. The lowest unit of the army was 10 and the highest 10,000 Toman. You have read in chapter 5 Nomadic Empire, where we have discussed about the military organization of the Mongols, where we have seen that decimal system was adopted by that implemented in their army by Genghis Khan. Toman it means 1,000, 10,000. The post Toman, whose commander was known as Khan. Then it was first introduced by Babur in North India. But it was Akbar who institutionalized it in Mughal military setup and civil administration after reforming and introductions of two new concepts, namely Jat and Sawar. Here, one more thing which I clear you, that Mansabdari system, even the Babur, he used Mansab system, but out of India. In India, first time this system used by Akbar. अपने शासनकाल के 11 वर्ष में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को एक्सेप्ट किया, और इस मनसबदारी सिस्टम में शासन के अंत तक जाते जाते उसने जात और सवार नामक एक नए व्यवस्था को इंप्लीमेंट कर दिया. अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या थी? द मनसबदार्स कंस्टिट्यूट द रूलिंग सेक्शंस इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर. द मनसबदार्स वर सेड टू बी द पिलर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. मनसबदार constitute the ruling section in the imperial
structure. Mansabdar was said to be the pillar of the Mughal administrations. The entire nobility, in fact, belonged to the Mansabs. Among them, one of the other held Mansabdari system was nothing but a system of nobles or Mansabdars, under which a Mansabdar or noble was granted the right to hold a Jagir, which means revenue assignments, not the land itself, for services rendered by them, but the authority bestowed upon them was not unbridled, but with the direct control of these nobles in the hand of the king. Here, this is the very important things which we have to understand, that Mansab, that was the post, that was the rank, that was the position. That meaning is very clear. The post was not hereditary. After the death of Mansab, that post had declined, abolished, finished, समाप्त हो जाती थी. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होती थी. Mansabdars, again I tell you that Mansabdars, that was the base of the Mughal administrations. Akbar implemented that system in the Mughal Empire. Mansabdars, their salary that was given in cash. But the salary given in cash, it means the cash, it would be, it could be क्या, ये एक जागीर के रूप में भी हो सकता था और नगदी के रूप में भी हो सकता था. मतलब मनसबदारों की जो सैलरी थी वो जागीर के रूप में भी दी जा सकती थी और सैलरी के रूप में भी, और नगद के रूप में भी दी जा सकती थी, कैश के रूप में भी दी जा सकती थी. तो मनसबदारी सिस्टम प्रॉपरली रन कर रही थी. डे बाय डे वी हैव सीन द कंडीशंस ऑफ द मनसबदारी सिस्टम was flourished in the Mughal period. It was the medium to satisfy the ambition of the warriors, the local kings. It also proved the mutual understanding, mutual bonding with the Rajputs and the Mughals, Maratha and the Mughals, Afghans, Turans, Tajik and Mughals. The bonding is very, ये जो संबंध थे वो काफी मजबूत थे दोनों. और ये मनसबदारी सिस्टम ही थी. दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम हु सेट अप दैट टाइप ऑफ रिलेशन. ये व्यवस्था एक यूनिक व्यवस्था थी. इनमें कुछ चीजें, मनसब में सबसे बड़ा मनसब, टॉप मिलिट्री टाइटल वाज खाने खाना. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अब्दुल रहीम खान खाना, हु वाज द कोर्ट रेस इन अकबर पीरियड. ही वाज आल्सो नवरत्न. द मनसब, द lowest mansab 10 to 500 they call mansabdar. 500 to 25 they call amir. Above 2500 amir umda. And the top post of the mansabdars khane khana. And 10,000 was largest mansabdari system. 10,000 was largest mansab in the reign of Akbar. In last time Akbar introduce a new types of system, Jat and Sawar. It means Jat, according to Jat, the salary has fixed, and Sawar, it means the horses. एक मनसबदार के पास कितनी जात है और कितने सवार हैं, इन दो आधारों पे कैटेगराइज किया गया. There are three categories of the mansabs: 5,000 Jat and 5,000 Sawar, 5,000 Jat and 3,000 Sawar, 5,000 Jat and 2,000 and below Sawar. मतलब सवार इट मीन्स द हॉर्स. एक योद्धा के पास कितने सवार होने चाहिए. और इसी व्यवस्था में लास्ट तक आते आते जहांगीर ने कुछ और इंप्लीमेंट किए. सिंह हस्पा, एक द्विहस्पा और सिंह हस्पा. इट मीन्स अ न्यू सिस्टम दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय जहांगीर, दैट वाज सिंह हस्पा एंड द्विहस्पा एंड सिंह हस्पा. इट मीन्स द्विहस्पा एंड सिंह हस्पा. इट मीन्स बिना
जात पद को बढ़ाए ही सवार को बढ़ा दी जाती थी। अब द्विअस्पा 2 घोड़े और सिंह अस्पा में 3 घोड़े रखने की व्यवस्था जहांगीर ने अपने मनपसंद सरदारों को प्रदान कर दी। इससे उनकी ताकत बढ़ गई और इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे एक नए फॉर्म में रिफॉर्म होती चली गई। बट औरंगजेब के समय तक आते आते मनसब की संख्या काफी वृद्धि हुई। द नंबर ऑफ द मनसब इट वॉज इंक्रीज इन ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग अकबर रेन, सॉरी औरंगजेब रेन। जमीन कम हो गई और फिर खालसा की भूमि भी मनसब के रूप में बांटी जाने लगी। मनसबदारों को खालसा की जमीन से भी हिस्सा दिया जाने लगा। ये एक व्यवस्था थी और बाद में अंत में ये डिक्लाइन का एक कारण बनी। तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम्स which we discuss here. Okay, the next topic we are going to discuss, that topic is the administrations. Hi dear students, if you will focus about the Mughal administration, then you can easily understand about the structure of Mughal Empire. The whole Mughal Empire divided into various Suba. During Akbar reign, there were 15 Suba. And then after in the last phase of Akbar, the number of Suba that was increased, it became 18. And the last prominent Mughal king, that was Aurangzeb, during that reign, the Suba, the number of Suba, that was 21 or 22. Suba, it means state. Empire, it means whole country, and Suba divided into various districts. The district called in Mughal period Sarkar, and Sarkar is divided into Pargana, and Pargana divided into the villages called Nagda or D, Mavada or D. It means the structure is up to down, center to village. We have seen the proper developed form. Every state controlled by the proper officials. In center, we have discussed the center empire controlled by emperor, and then after in the for the emperor support of Vijarat. In Vijarat, the Wazir or Wakil, that role is very prominent. But in Akbar period, Akbar had minutely observed about the power of Wazir, and he decided to what? Separate some financial power, and the new post organized, that post was Diwan. The next post that was generated by Akbar, Diwan, which comes in that post like Wazir. In the initial time, Wazir have both power, even military power and financial power. But having seen the situation of the Behram Khan, Akbar decided to separate it, and he separate the Wazir and Diwan. The second, Mir Bakshi, which we have discussed, the Mir Bakshi, his signature, it was the what? Pay ministers. On his signature, the salary that has delivered. कैश जो सैलरी दी जाती थी सेना को, वो मीर बख्शी के सिग्नेचर के आधार पे सरकत नामक पत्र जारी करके ही दी जाती थी। मीर बख्शी, देन आफ्टर द सदर सुदूर, ही वाज chief of the religious matter, Sadr Sudur. He suggested that emperor in the religious matter, he was the advisor. Sadr Sudur was the advisor of the religious matter. ये religious matter का advisor था. That was the proper developed form. वजीर थे, दीवान थे, मीर बख्शी था, फिर सदर सुदूर थे। सदर सुदूर धार्मिक मामलों को देखता था, मीर बख्शी मिलिट्री को देखता था, और वजीर पूरे प्रशासन को कंट्रोल करने का प्रयास करता था। सिमिलरली स्टेट इट मीन सूबा कंट्रोल होती थी गवर्नर से, जिसे सूबेदार कहते थे। सूबेदार की सहायता के लिए वहां पे दीवान और बख्शी एंड जस्ट लाइक ये दीवाने सदर नियुक्त रहते थे। इवन देवर सेपरेट पावर, बट इनके अपने सारे चीजों को ये कंट्रोल करने का प्रयास स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को था।
ये इनके अंडर में थे कि स्टेट कैसे फंक्शंस करे, रेगुलेट करे प्रॉपरली। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कई जो सूबे थे कई सारे सरकार में बदले थे, सरकार में बटे होते थे, सरकार मतलब जिले, और ये जिले फौजदार के कंट्रोल में होते थे। यहाँ पे फाइनेंशियल काल जो फाइनेंशियल काम थे वो आमिल गुजार कंट्रोल करता था, और धार्मिक मामलों को काजी ए सरकार नामक ऑफिसर्स कंट्रोल करता था। ठीक इसी तरीके से सरकार भी कई सारे परगनों में बटे थे। ये परगनों के मुखिया को सिकदार कहते थे। वहां पे फाइनेंशियल जो मैटर्स थे उसको आमिल देखता था, और वहां पे काजी की अपॉइंटमेंट जो धार्मिक मामलों को देखता था। यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। इंपरर मीर बख्शी वजीर और वकील की सहायता के सजेशन पे ही स्टेट में दीवान को अपॉइंट किया जाता था, और दीवान के सजेशन पे ही आमिल गुजार और आमिल अपॉइंट होते थे। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर एक है, वजीर टू दीवान, दीवान टू दीवाने सद्र, दीवाने सूबा एंड आमिल गुजार। ठीक वैसे ही मीर बख्शी के सजेशन पे, उसकी एडवाइस पे बख्शी ए सद्र की अपॉइंटमेंट होती थी, और फिर बख्शी ए सद्र के कहने से स्टेट जिले और फिर नीचे के पोस्टन होते थे। ठीक सदर सुदूर धार्मिक मामलों का प्रधान, सदर सुदूर के सजेशन पे ही नीचे के सेक्शन में दीवाने सद्र का अपॉइंटमेंट होता था, और दीवाने सद्र काजियों की अपॉइंटमेंट करते थे। इट मीन्स पूरे सिस्टम्स काजी दीवाने सद्र के सजेशन, सदर सुदूर फाइनली इनको अपॉइंट करता था। मतलब सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू परगना एंड परगना टू विलेज, ये सिस्टम्स यहाँ पे समझे। एम्पायर, सूबा, सरकार, परगना, मावदा या डी विलेज को कहते हैं। It means we have seen here the proper administrative system was in developed form during Mughal period. On the basis of that, we can clearly see. हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रॉपर डेवलप फंक्शन था मुगल काल में। Without any hesitation, we can easily understand about that system. हमने डिवाइड किया, स्टेट डिवाइडेड इनटू सूबा डिवाइडेड इनटू सरकार डिवाइडेड इनटू परगना divided into Mavda or D. It means village. And just like that, emperor who controlled the whole empire, Subedar or governor controlled the Suba, and Faujdar who controlled the Sarkar, and Sikdar who controlled Pargana, and Khut Mukaddam or Chaudhry controlled the village or Nagda. And next, Diwan, who was the financial chief. Diwan was the financial minister, who controlled Diwan, Wazir or Wakil, who controlled the administrative system. Wazir or Wakil controlled the administrative system in center. Especially Diwan, who controlled the financial system. Similarly, in state, Sadre Diwan. It means Diwane Suba, who was appointed with the suggestion of the Diwan by emperor. And then after in Sarkar, we have seen Amil Gujar, who regulate the financial matter in Sarkar, it means district, and Amil, who regulate the financial system in Pargana. Similarly, the next Sadru Sudur, it means he was the minister of religious matter with the advice of that ministers Sadre Sudur, Subae Sadr appointed, and next Subae Sadr, Sadre Sarkar and परगना में काजियों की अपॉइंटमेंट हो सकती है। एक पूरी सिस्टम डेवलप थी, एक व्यवस्था थी जिसके अकॉर्डिंग पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था। द डिवीजन ऑफ फंक्शंस established at the center was replicated in the provinces Suba, where the ministers had their corresponding subordinates Diwan, Bakshi and Sadr, which I discussed. The head of the provincial administration was the governor Subedar, who reportedly directly to the emperor. The Sarkar it means district, Sarkar into which each Suba was divided into often the overlapped with the jurisdictions of the Faujdar commandants, who were deployed
with the contingents of heavy cavalry and musketeers in districts. The local administrations was looked after the level of the Pargana, Suba districts, by the semi-hereditary officials, the Kanungo, keeper of revenue records, the Chaudhry in charge of the revenue collections, and the Kaji. They were appointed in Pargana, and each department of the administration mentioned a large support staff of clerk, accountants, auditors, messengers, and other the functionaries who were technically qualified officials, functioning in accordance with the standardized rules, and the producers and the generating the copies, written order and record. Persian was made the language of administration throughout whole empire. But local language were used for the village accounts. It does never mean that the Persian language is the official language, but the other language is not favored. Local language also used on the local level for the किसके लिए जो डिसीजन लिखे जाते थे, जो अकाउंट्स बनाए जाते थे, उनके लिए लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल लोकल स्तर पर किया जाता था. लोकल लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर द विलेज अकाउंट्स. द मुगल्स क्रॉनिकल्स यूजुअली portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level, and as you have seen chapter 8, this could hardly have been process free of tension. The relationship between local landed magnates, the Jamidar, and the representative of the Mughal emperor was sometimes marked by the conflict over authority and share of the resources. That Jamidar often succeeded in mobilizing the peasant support against the state. It means Jamidar also play a very important role. If you will go in your the senior classes where you have read what was the conflict between the Jagirdar and Jamidar, what was the conflict between the Mansabdar and Jagirdar, what was the role of Jamidars also. जागीरदारी जो समस्या थी वो मुगल काल की एक बड़ी समस्या बन के सामने आई. जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी सिस्टम मुगल काल के डिक्लाइन का एक कारण बनी. इन चीज़ों के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने देखा पूरी एक सिस्टम डेवलप है. अगर आप देखेंगे तो पूरी एक व्यवस्था प्रॉपर विकसित रूप में दिखाई दे रही है आपको. अगर इन चीज़ों को टेक्निकली पढ़ें आप तो आपको दिखेगा कि केंद्र में जो स्थापित कार्यों का विभाजन था वो सूबों में किया गया था. सेंटर सूबों में बटे थे और यहां भी केंद्र के समान सेंटर के समान ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी. दीवान, बख्शी और सद्र यहां भी होते थे और प्रांतीय शासन के प्रमुख गवर्नर सूबेदार के द्वारा यह सूबा कंट्रोल किया जाता था. विच आई डिस्कस. प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था और जो सीधा बादशाह को अपनी रिपोर्ट भेजता था. स्टेट के सारे मैटर्स को डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार गवर्नर के हाथ में था, सूबेदार के हाथ में था. वो डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट्स एम्पर को भेजता था. प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटे होते थे. सरकार मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट्स, और अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी. इन इलाकों में फौजदारों का विशाल घुड़सवार फौज, तोपची साथ रखे जाते थे. परगना जो उप जिला थे, परगना जो नेक्स्ट लेयर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उस स्तर पर प्रांतीय स्थानीय शासन की देखरेख में 3 जो सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती थी. ये कौन कौन थे? कानूनगो दैट वाज, ये क्या करता था? ये राजस्व लेखों को रखवाली करता था, राजस्व अभिलेखों को कंट्रोल करता था, उसको मेंटेन करने का काम कानूनगो करता था. देवर ऑफिशियल्स, इट मीन्स जो ये छोटे छोटे लोग थे जो
जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोअर लेवल पे थे, इनके पोस्ट को सेमी हेरिडेटरी रखा गया। और ये सेमी हेरिडेटरी रखने से सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इसमें कुछ सिस्टम डेवलप करने पड़े। दे वर मोस्टली क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, दे वर मैसेंजर्स एंड ये कई सारे लोग थे जो ये काम करते थे। ये संदेशवाहक थे, कर्मचारी होते थे। कहता है शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, मैसेंजर्स और बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो तकनीकी रूप से बड़े ही स्किल्ड होते थे, मानकीकृत नियमों के प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा खूब अधिक संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत भी तैयार करते थे। सर्वत्र पूरे एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज एक मेन लैंग्वेज के रूप में थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांव विलेज स्तर पे, लोकल स्तर पे पर्शियन लैंग्वेज ही यूज किए जाए। गांव के विलेज लेवल पे लोकल लैंग्वेज में भी ये आदेश लिखे जाते थे। स्थानीय भाषा का भी प्रयोग इस लेखा को बनाने में, तैयार करने में किया जाता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह, एम्परर, उसके दरबार में ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए दिखाया है। इट मीन्स एम्परर डायरेक्ट कंट्रोल करता था, ऊपर से लेकर नीचे सभी लेयरों तक उसकी पकड़ थी। ये बात सभी कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ने इस बात को लिखा है। ये जो चीजें थी, जैसा कि आपने देखा चैप्टर 8 में, और इस प्रक्रिया को तनाव मुक्त रहने का असंभव सा हो गया था कि स्थानीय जमींदार और जो मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच संबंध कई बार रिसोर्स के बंटवारे को लेकर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं, हमें झगड़े उत्पन्न हुए। और ये जमींदार इस प्रक्रिया में काफी कॉन्फ्लिक्टेड मैटर क्रिएट करने लगे। और फिर जब ऐसी स्थिति होती थी, रिसोर्स के बंटवारे में जब दोनों के बीच टकराव होता था, संघर्ष होता था, तो ऐसी स्थिति में जमींदार राज्य के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ किसानों को एकजुट करके अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते थे। तो ये व्यवस्था थी, और ये जमींदारी जो व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था भी मुगल के डिक्लाइन में महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो ये था एक एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, अगर इसको देखेंगे बियॉन्ड द फ्रंटियर्स टॉपिक को, तो आई थिंक इट इज वेरी इजी टॉपिक। इफ यू विल सी, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इजी। अगर देखें तो मुगल बादशाहों द्वारा ये धारणा की गई थी कि जो टाइटल्स थे इनको एक कैटेगराइज किया गया था, और इसके अंतर्गत शहंशाह, राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियां, जहांगीर इट मीन्स विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहां विश्व का राजा जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास जो टाइटल्स थी वो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। मुगल बादशाहों के अविजित क्षेत्रीय राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राय जो पोस्ट थे, जो इनकी पदवी थी, ये पदवियां जो इन्होंने जो एडॉप्ट की थी, वो उनके अर्थों का हवाला देते थे। लेकिन यही समकालिक इतिहास लेखक जो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियां थीं, वो उनके रिश्तों और संघर्षों का विवरण देते हैं। वो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनके आधार पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, और यहीं पे पॉलिटिकल कंपटीशन दिखाई देने लगता है। इट मीन्स राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स लिस्ट मेनी हाई साउंडिंग टाइटल्स assumed by the Mughal emperors. These includes general titles such as Shahjahan, King of King, or specific titles assumed by individual kings upon the ascending the throne, such as Jahangir. It means world Caesar, or Shahjahan, King of the world. The chronicles often drew on these titles and the meanings to reiterate the claim of the Mughal emperors to uncontested territorial and the political control. Yet the same contemporary historians provide accounts of the diplomatic relationship and the conflicts with the neighboring political powers. This reflects some tension and the political rivalry arising from the competing regional interest. Safavid and Kandhars. Kandhar was the post that was very important for both. Kandhar situated on the boundary of the Safavid kings and the Mughal kings.
कांधार वो जगह था जो भारत में प्रवेश का मार्ग था। इस पर नियंत्रण के लिए दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। ये शक्तियां थी मुगल और सफावी किंग ईरान के शासकों के बीच। फाइनली एक लंबे अंतराल के बाद अकबर ने पहले उसको अपने कंट्रोल में किया। जहांगीर के समय कुछ दिनों तक कब्जा रहा, ईरान ने अपने अंडर में लिया, फिर जहांगीर ने कंट्रोल किया और फाइनली शाहजहां के काल में फाइनली कांधार जो पोस्ट थी वो ईरानियों के पास चली गई। लेकिन इसके बाद भी ये इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी दोनों के रिलेशन प्रॉपर बने रहे। अगर आपको याद होगा कि हुमायूं अपने निर्वासन काल में जब वो शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था तो ईरान के शासक के यहाँ जाके ही शरण लिया था। तो ये दोनों के संबंधों को शो करता है। कहते हैं मुगल राजाओं तथा ईरान और तुरान पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा नियंत्रण पर निर्भर करता था। कांधार हिंदू कुश पहाड़ी पर निर्भर था और इसे कंट्रोल करना दोनों चाहते थे, ईरानी भी और मुगल भी, और इसके लिए दोनों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ये सामरिक चौकी थी जिसपे नियंत्रण करना दोनों की मजबूरी थी। काबुल व कांधार पर नियंत्रण के द्वारा संभावित खतरे से बचा जा सकता था, क्योंकि बाहर से भी कोई अटैक आता तो पहले वहीं उसको रोका जा सकता था। कांधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी। ये किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कांधार पर यह दावा करता रहा। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में रहने के वकालत करने के लिए एक दूत भेजा। यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 जाड़े का महीना, फारसी सेना ने कांधार घेर डाला और मुगल रक्षक सेना पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और फाइनली कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। ये थी कांधार पे कंट्रोलिंग। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी दोनों में कि दोनों के बीच नेबरहुड बना रहा, पड़ोसी दोस्ताना संबंध बने रहे। कांधार ईरानों के पास गया या कांधार मुगलों के पास रहा, भले ये कॉन्फ्लिक्टेड मैटर था लेकिन दोनों के बीच विश्वास बना रहा। ऑटोमान साम्राज्य नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑटोमान पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। आप इन टॉपिक्स को देखें, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।